Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Bano. Today we will discuss excretion in hydra and excretion in planaria. Our today's topics are nature of excretory products in hydra and planaria, excretory system in hydra, excretory system in planaria, and protonephridium and flame cells structure and function in the excretory system of planaria. First of all, we will discuss the nature of excretory products in planaria and hydra. As you know, hydra and planaria, they both are freshwater species. So in freshwater, extra water which moves from hypotonic environment to inside the body of living organism is considered as a waste product. So this extra water must be removed and considered as a waste product. Second excretory product is carbon dioxide, which is produced from the process of respiration, and the chief excretory product in these organisms is nitrogenous waste, which is in the form of ammonia. So these are the excretory products. First of all, we will discuss excretion in hydra. हाइड्रा ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है. इट इज़ sessile and cylindrical in shape, belonging to phylum Cnidaria, and class is Hydrozoa. It has no specialized excretory organs, hence the excretion in hydra occurs by diffusion through the general body surface. So the correct answer that how excretion in hydra takes place is through the general body surface. It is diploblastic organism. There are only two cellular layers. बाहर वाली layer is ectoderm and inner layer is the endoderm, and between these two layers is a jelly like material, mesoglia. So the all cells of the body are in direct contact with water. ठीक है, ये बॉडी के बाहर भी वाटर है, बॉडी के अंदर जो इसकी वेस्ट लाइक बॉडी है और इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल जो है वो सैक लाइक है. डाइजेस्टिव सिस्टम तो माउथ के टेंटिकल्स हैं, और माउथ से जब वाटर एंटर होता है तो डायरेक्ट वाटर का कांटेक्ट किसके साथ है, एंडोडर्म के साथ, और एक्टोडर्म जो है या एपिडर्मिस उसका डायरेक्ट बाहर जो एक्सटर्नल वाटर है उसके साथ कांटेक्ट है. तो बाहर वाले सेल जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो कि इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको वाटर में रिमूव कर देते हैं, और इनर लेयर के सेल्स जो हैं वो जो माउथ से वाटर एंटर होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल में उसमें रिमूव कर देते हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को. सेकेंड इज़ एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया. अब प्लेन एरिया इज़ फ्लैटवर्म. It lives in fresh water. Their excretory system consists of two tubules connected to a highly branched duct system that leads to the pores located all along the sides of body. After excretion, only useful metabolites are reabsorbed by the cell. क्या प्लेन एरिया जो है ये फ्लैट वर्म में आता है, फ्रेश वाटर में होता है, और इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, पूरे बॉडी फ्लैट बॉडी है, लीफ लाइक इसका बॉडी होता है, और इसमें ब्रांचेस हैं. ये देखें 2 ब्रांचेस हैं इसकी. एक्सक्रीटरी पोर्स बॉडी के बाहर हैं, और ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं या एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं इसमें ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं इनको एनलार्ज करके दिखाया हुआ, ये फ्लेम सेल्स हैं. तो फ्लेम सेल्स का रोल है एक्सक्रीशन में कि ये बॉडी के फ्लूइड से कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को पास करते हैं किसमें, एक्सक्रीटरी कैनाल्स में. अब नेचर ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ अमोनिया. Ammonia is excreted predominantly as the nitrogenous waste product. Next, the structure of flame cells, role of flame cells in plane area. The cells in the tubules are called flame cells और protonephridia. कि ये जो इसका excretory system है प्लेन एरिया का उसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, और इसमें फंक्शनल यूनिट जो है एक्सक्रीशन के लिए वो क्या है, फ्लेम सेल्स हैं. और इनको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव क्लस्टर ऑफ सीलिया दैट लुक्स लाइक फ्रिकलिंग ऑफ फ्लेम व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप. कि अब इन के अंदर जो है न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म के अंदर सीलिया होते हैं जो कि मूव करते हैं इस तरह से जैसे कैंडल का फ्लेम मूव कर रहा होता है ना, तो वो उस तरह से मूव करते हैं. और उनका किस लिए मूव कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट किए हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो एक्सक्रीटरी डक्ट में पास करनी है, उसको प्रोपेल करने के लिए मूव करते हैं. तो इस तरह से लगता है जैसे एक फ्लेम मूव कर रहा हो, इस वजह से उन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं.
और इनका रोल क्या है? फ्लेम सेल्स फंक्शन लाइक अ किडनी रिमूविंग वेस्ट मटेरियल थ्रू फिल्ट्रेशन। के अब किडनी की तरह जैसे हमारे बॉडी में या बाकी मैमल्स के बॉडी में या वर्टिब्रेट्स में किडनीज़ का रोल है एक्सक्रीशन में, इसी तरह से प्रोटोनेफ्रिडियम में फ्लेम सेल का क्या रोल है कि ये फिल्ट्रेशन करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी डक्ट में पास करते हैं। ये फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है कि इसमें देखें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ल्यूमन है खाली जगह वहाँ पे फ्लेम सेल्स हैं, तो सराउंडिंग सेल से ये या सराउंडिंग फ्लूइड जो है इसके उससे कलेक्ट करके नाइट्रोजनस वेस्ट को वाटर में, एक्स्ट्रा वाटर इनमें होता ही है, फ्रेश वाटर है तो वाटर प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, इस वजह से ये अमोनिया रिलीज़ करते हैं। तो इस वाटर को ये मूव किस में करते हैं? इंट्रासेलुलर सेल्स के दरमियान में जो डक्ट है एक्सक्रीटरी डक्ट उसमें, और फिर ये डक्ट जो है एक्सक्रीटोपोर के थ्रू बॉडी के बाहर, बॉडी की दोनों साइड्स पे पोर्स होते हैं इस डक्ट के जिनको एक्सक्रीटोपोर कहते हैं, तो वहाँ से वो बाहर रिमूव करती हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। So students, that's all from today's lecture. Allah Hafiz.